Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. Tuning up right back with another important video of textual importance of history and political science. Here it's time to come on to the finale of the paper. Right now we are about to head into social science, and after that you are just a free bird. This is how you'll be feeling how Independence Day was 75 years back when they all got freedom from British. Let's just talk and dive into history and political science importance. Coming on to the page number 1 of the same chapter. Chapter number 1 of the same subject. Where are we? Yes. पेज नंबर 1 में राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड को प्लीज़ मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट. ऑल राइट, एज एंड व्हेन वी मूव अहेड वी गॉट क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए. Then we move on to the next exercise, that is next page number, that is page number 3, Voltaire. Voltaire question can be asked to you in the form of give reason or short note. You must be ready to answer it in any way. Karl Marx, as you know, that is an important person who have shaped the history, and which is why I personally feel, and it has also been asked in the board exam quite many a times, the answer of Karl Marx. Please mark it up. Then we move on to the same page, next page, of the same chapter. Analyst school is what you're going to highlight once again, alright, which is the ending of all the importance in the first chapter. Alright, when we come on to the page number 6, वहाँ पर आपको notable scholar in Europe दिख रहा होगा, वो उसका एक importance है. ऑलराइट, हम लोग आगे बढ़ता है चैप्टर नंबर 2 पे. इंडियन ट्रेडिशन करके आपको मिला चैप्टर, यस और नो. यहाँ पर आपको आना है नीचे 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 एंड कमिंग ऑन टू पेज नंबर 10. व्हाट इज़ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट इज़ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. इसको आपको क्या करना है, हैशटैग मार्क करने का है. ऑलराइट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. देन वी टॉक अबाउट वी.के. रजवाड़े क्वेश्चन. वी.के. रजवाड़े को प्लीज़ गिव रीजन फॉर्म में और शॉर्ट नोट फॉर्म में लिखने के लिए रेडी रखना. देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री में. तो वी गो विथ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, वो आपने मार्क कर लिया. ऑलराइट, देन feminist historiography is not that way important, but the sign on this page number, that concept map on page number 14, complete the table and following chart, इसको please आप mark कर लीजिए, जेम्स मिल वाला, which is important. Then we move on to this chapter called chapter number 3, applied history. In applied history you are supposed to mark everything which is important right from the beginning. यहाँ से अगर आपको आंसर आ सकता है चैप्टर नंबर 3 से, तो ये वाला आ सकता है, व्हाट इज़ द अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स. ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर डिटेल के फॉर्म में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना. पेज नंबर 18 पे यू हैव गॉट 2 बॉक्सेस. वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये आप रेफरेंस डालना, बट वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट इसको प्लीज़ पक्का रेफ़र करना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, देन वी मूव ऑन टू पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 में देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट, बट ऑन पेज नंबर 20 वी हैव गॉट दिस बॉक्स ऑफ म्यूज़ियम, इंडियन म्यूज़ियम इन कोलकाता. तो ये आप एक बार इसको अच्छे से क्या करना, रिवाइज कर लेना, बिकॉज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रियली बाउंस अप ऑन द एग्जामिनेशन डे from this area, I guess. Then यहाँ पर आपको दिख रहा है on page number 21 we have got 2 question. Explain the following statement with reason and write an elaborate answer. इसमें आपको how is the method of history useful in the research of science and arts, ये रिवाइज करना है. फिर इसके बाद में you have got question in question number 4 में question number 2, इसको रिवाइज करना. list of the world heritage site is announced by UNESCO. इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, we have moved on to chapter number 4 now, yes or no. 4th chapter, since it was omitted for last 2 years because of coronavirus, I would tell guys, to all of you, that again leaving this chapter in an option would not affect any of your marks, I guess. I feel that personally you should leave this chapter, and
इसमें से अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है पढ़ने लायक है तो आप प्लीज़ एक बारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज कर लेना. द डिटेल आंसर विच आई फाइंड इम्पॉर्टेंट इज ऑन पेज नंबर 31. Question number 1 and question number 3 is what you should mark. Question number 3 is a common question. You would be finding it out in the every chapter year after. तो आप इसको question number 3 को किस तरीके से आप common बना सकते हो, you should work on that. I'm sorry, you should work on that. And with that we move on to the next chapter, that is on page number 32, mass media and history. While I talk about mass media and history, in this chapter everything is important because it carries a lot of weightage. Right from page number 32, Bengal Gazette, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए. दर्पण को आप स्टार मार्क कर लीजिए. अलग अलग जो पेपर के नाम है, प्रभाकर, ध्यानोदय, ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है. ओके, वाई टेलीविजन इज़ इम्पॉर्टेंट, रेडियो ऑडियो विजुअल सोर्स, ये वाला आंसर को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अगेन अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट. ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा, वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन विच इज़ कॉल्ड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन which you need to do it very well. Okay, short note on what? Mass media and professional opportunities. I hashtagged it already. TV वाला भी मैंने hashtag किया है. पेज नंबर 38 पे जब आप आओगे तो आप एक कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट है न्यूज़पेपर, रेडियो एंड बैकग्राउंड का, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 4th and 6th चैप्टर को अगर आप ऑप्शन में वापस छोड़ दोगे ये साल के लिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल लिव इट. आगे जो मैं बढ़ूँगा तो वी गॉट क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 41, 42, 43, 44 में आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मार्क करना. बट ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एंड में एक्सरसाइज पार्ट में मार्क करके दिया है उसको प्लीज़ आप रिवाइज करना अच्छे से. ऑन पेज नंबर 45 वी हैव गॉट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ राइट शॉर्ट नोट्स. थर्ड वन इज एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. Question number 5 में answer the following question in detail. What is Pawara? Complete the following chart. All these 3 questions are important. Then in chapter number 7, sports and history. Sports and history में the first box itself of Olympics is really important. You should know the color of the circles. You should know what is it all about. And also if this question has been asked to you in the 4 marks type, you should be able to write down 4 or 5 justifying points. Alright, also if you will include the question, if you will include your answer with the diagram, it would still carry a lot of weightage. Okay, हम लोग यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 46 पे. वी हैव गॉट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, जस्ट स्टार मार्क इट. देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड वी गेट व्हाट एज इम्पॉर्टेंट. लेट मी जस्ट सर्च 1 minute. Page number 51 पे you get write short notes, sports and movies. That is important. Explain the following statement with reason. Currently the structure of sports and economy has been significantly affected. उसको star out कर लीजिए. Then on page number 51, question number 4, explain the difference between indoor game and the outdoor game. ये important mark कर लीजिए. आगे जब मैं आऊँगा chapter number 8, tourism and history, मार्को पोलो वाले आंसर में आपको ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखने आना चाहिए ये वाला आंसर. देन ओनली इट विल मेक सेंस. ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर आपको दिखेगा ये सेम चैप्टर के अंदर यू हैव गॉट इम्पॉर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्स कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूरिज्म. आपको कंसेप्ट चार्ट के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, हिस्टोरिकल, एग्रो, मेडिकल, इकोनॉमिकल, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जियोग्राफिकल, हेल्थ. ये आपने लिख दिया अच्छे से तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, एंड उसका डिटेल फॉर्म में भी आपको आएगा तो आपको लिखने आना चाहिए. अगेन एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स, भिलार, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है या तो इन लोग बुक का ड्राइंग बना देंगे, आपको उसको डिस्क्राइब करना बोलेगा. एनीवेज इट कुड बी आस्क्ड टू यू. भिलार इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ विलेज ऑफ बुक. सॉरी. Here we have got important questions hashtagged over here on page number 58. Give elaborate answer in the following. Describe any 3 types of tourism, professional field opportunities associated with tourism. All the 2 answers are important. Okay. Then यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे we have got chapter number 9, heritage management. Coming on to the conclusion and end of history chapters. Heritage management में I am directly skipping on to which part on the question answer part. From there I want to tell you which answers are important.
ओके, पेज नंबर 66 पर जब आप आओगे तो यू गॉट राइट शॉर्ट नोट ऑन विश्वकोश। ओके, यहाँ पर स्थल कोश को मार्क कर लीजिए एंड गिव elaborate आंसर में विच आंसर इज important. I'll tell you, 1 minute. Why is the library management important? ओके, ये वाला आंसर जो है ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला, वाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। एंड टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का कॉन्सेप्ट मैप प्लीज़ देख के जाना, आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको बेस्ट तरीके से इसको सॉल्व करने आ जाएगा। ऑलराइट, moving further ahead, we come on political science. I'm so sorry, political science part. Political science में we have got 5 chapters as important chapter. मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि 5 में से आपको सिर्फ 4 ही करना है। अगर आप लास्ट के चैप्टर को इग्नोर करते हो तो इट्स ऑल राइट, लास्ट के 2 चैप्टर को भी आप इग्नोर कर रहे हो तो भी नो वरीज, बट ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है इसको फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से पक्का करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी वार्निंग दे चुका हूँ कि अगर आपने 3 चैप्टर पढ़ा इसमें से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो भी इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, आपको 12 आउट ऑफ 12 पूरे मिल सकते हैं। बट ये लास्ट के 2 चैप्टर अगर आप छोड़ते हो तो ये 3 आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, पेज नंबर 69 पे, पेज नंबर 69 पे आपको दिख रहा है यहाँ पर वोटर का एज चेंज हुआ है, राइट टू वोट वाला आंसर है, पैराग्राफ है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। यस, तो आप अपने वर्ड्स में उसको फॉर्म करके लिख सकते हो। हिस्ट्री के पेपर के सबसे कमाल की बात यही है कि आप अपने तरीके से अपने वर्डिंग्स में आंसर को लिख सकते हो, तो इसके थ्रू आपको मार्क्स क्या हो जाएगा, ग्रांट किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। एम आई क्लियर? हिस्ट्री के आंसर्स में, पॉलिटिकल साइंस के आंसर में, ज्योग्राफी के आंसर्स में, वॉट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन एडिट योर ओन टेक्स्ट एंड कैन राइट इट डाउन, बिकॉज आपको ऐसा कहाँ पे भी नहीं बोला गया रहेगा कि वर्ड टू वर्ड लिखो। हिस्ट्री कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं लिखनी चाहिए, एज पर एज what you know and what knowledge you have gained from your point of view, you are supposed to write down in that manner. समझे? आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़ है। यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ऑलराइट, रिजर्वेशन ऑफ सीट। ओके, देन वी गॉट दिस पार्ट, the scheduled tribes and law relating to women. scheduled tribe and law relating to women में से प्लीज़ एक आंसर एग्ज़ाम में आएगा, एक्सपेक्ट करिए क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस टाइम भी आने के इसके चांसेस हैं। रोल ऑफ जुडिशरी यहाँ पर रहेगा, आपने देखा रोल ऑफ जुडिशरी, उसको एक बार ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए रोल ऑफ जुडिशरी को। इसके बेसिस पे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए डायरेक्टली, आई एम सो सॉरी, 2 मार्क्स के लिए ही, तो आपको उसको लिखना आना चाहिए। ओके, देन वी मूव फर्दर हेड ऑन पेज नंबर 74, वी हैव गॉट 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन को स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, ये वाला आंसर इन ब्रीफ में, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग एज, व्हाट इज़ मेन बाय PCIJ, ओके, और सोशल जस्टिस का मतलब क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड इलेक्टोरल प्रोसेस champion. Electoral process chapter is again an important chapter. Here you cannot lose any marks. This chapter is again for 4 marks with option. all right, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ऑप्शन के साथ भी मार्क्स जाए, पूरे के पूरे मार्क्स आपको आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, देन यहाँ पर सुकुमार सेन वाला जो आंसर है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आगे जब मैं बढ़ूँगा, वी हैव गॉट फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन का काम ही ये है कि किस तरीके से चीज़ों को एलोकेट किया जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को इन द सेंस इलेक्शन को बनाया जाएगा, इलेक्शन को रखा जाएगा एंड ऑल दैट थिंग। ऑलराइट, देन वी हैव गॉट this dabba on page number 77. Remember this, Ram Charan Negi was from Himachal Pradesh, the first voter to cast the vote in the independent India. So this is important, सिर्फ वोट कास्ट करने का जिसमें इतना फेमस हो गया है। Ram Charan Negi, right? This can be asked to you in the IES interview. This type of questions are asked over there. Who was the first voter
where was the first voting held. So you should be very much keeping all this information of general knowledge in your mind. Okay. आपको पता है ना 5 लाख जन दिखते हैं पेपर IAS का, और पास कितने होते हैं? सिर्फ 5,000 या 50,000. तो इतने लोग गायब कैसे हो जाते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. समझ में आया? जिसको क्रैक करना इज जस्ट सो डिफिकल्ट, जस्ट so difficult. It is one of the toughest examination in Asia, and in world wise it is 3rd or in 4th rank. Understood? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है. अगर एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के, तो आप उसको लिख पाओ. पेज नंबर 78 पे व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यू हैव गॉट मैनी ऑफ द डॉट्स, राइट. तो इसको आप एक बार ही स्टार मार्क कर लीजिए. अगर इसको स्टार मार्क करके आपने अच्छे से इधर पे प्रेजेंट कर दिया, एग्जाम में अगर आया तो ये यू विल डेफिनेटली गेट योर फुल मार्क्स. ऑलराइट. ये जो अभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू EVM मशीन, इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड टू यू इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफ. इसको आपको वैसे का वैसे लिखना है जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया, बट आप इसको पॉइंट वाइज लिखोगे. कैसे लिखोगे इसको? पॉइंट वाइज लिखने का फ़ायदा आपका ये रहेगा कि आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ने आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो उसके अंदर लिखा हुआ है, और आप इसको लिख के आओगे तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे आपके ब्रीफ. समझ में आया? आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का जो हिस्ट्री का पेपर एकदम बॉम्ब होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था मेरे को तो भरोसा था हिस्ट्री के पेपर में मुझे 39 भी नहीं मिलेगा, मुझे पूरा 40 में से 40 मिला है, क्योंकि मेरा पेपर लिख के 1 घंटे में हो गया था. मैंने 1 घंटे के अंदर उसको 200 बार चेक किया था पेपर को, एंड आई वॉज सो गॉड डैम श्योर कि मैंने जहाँ 3 मार्क का क्वेश्चन था मैंने वहाँ पे 8 पॉइंट लिखा है, जहाँ 4 मार्क का क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने 10 पॉइंट लिखा है. तो मुझे पता था मेरा वर्ड मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, हाईलाइट करा है मैंने सारे वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के मैंने उसका ही आंसर लिखा है. ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस भी अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन आंसर के भी ऑप्शन अटेम्प्ट करके मेरा पेपर 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया था. 1 घंटे में मेन पेपर, 1.5 घंटे में विद ऑप्शंस. समझ में आया? तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि पेपर में आपको टाइम मिलेगा, फटे टाइम मिलने वाला है. आपको सिर्फ क्या करने का है, वही क्वेश्चन लिखने का जिसके आपको पूरे के पूरे पहुँच जाते हैं. और स्कोरिंग पेपर है, पूरे 40 में से 40 आ जाएगा, 8% सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा. ये बात ध्यान रख लेना. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के पेपर के लिए आपके पास भले से 1 दिन की छुट्टी हो, बट ये 1 दिन आपके लिए सबसे बड़ा बोनस दिन मिला है आपको, क्योंकि इसमें आपको 8% पूरे मिलने वाले. जब क्या पता आपने अलजेब्रा में पूरा नहीं राइट लिखा हो, साइंस में पूरा राइट नहीं लिखे हो, और हिस्ट्री में आप पूरा राइट लिख सकते हो. समझ में आ गया? आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है. ऑलराइट. मैं आगे बढ़ता हूँ. यहाँ पर वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 81 में वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को ये जो कॉन्सेप्ट मैप दिया है उसको प्लीज़ स्टार कर लीजिए. ओके. देन वी गो ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज. What are the role of political parties? This is the question that have been asked to me also when I was in 10th standard. So I wanted to revise it because now you are in 10th standard. This can be asked to you too. Alright. हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिए. आगे जाते जाते हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, और क्या ही इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ. नेशनल पार्टीज़ के नाम आपको याद रहना चाहिए. नेशनल पार्टीज़ कितनी है अभी? तो इसके अंदर आम आदमी पार्टी भी आ गई है. यस और नो? यस और नो? वेरी गुड. एंड हु इज द कर्ता धर्ता ऑफ आम आदमी पार्टी? Arvind Kejriwal. Very good. Understood? We got this chapter over here on page number 85. 85 में आपको दिख रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है. इसके लोगोज आपको याद रहने चाहिए, सिंबल सॉरी, एंड नाम भी बराबर आपको पार्टी के नाम रहने चाहिए. अगर नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया का 6 सर्कल्स आता है तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलने ही चाहिए. रीजनल पार्टीज वाले क्वेश्चन में भी हम लोग जब मूव ऑन करेंगे हमारा फोकस, तो आपको पता है यहाँ पर शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल है, MNS है, जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्रेंस है. ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है. असम में गणा परिषद है. ओके. देन व्हेन वी मूव फर्दर अहेड वी गॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइट फ्रॉम पेज नंबर 90 में
व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिए। नेशनल पार्टीज़ को मार्क कर लीजिए, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स तो आप पूरा करने वाले हो तो ऑब्जेक्टिव्स का मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, बट या वो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पार्टी, उसको आप मार्क कर लीजिए। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स वाले चैप्टर में आते हैं 90। अगर आपने इसको ऑप्शन में नहीं छोड़ा है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है। मूवमेंट्स में आपको पढ़ना है फार्मर मूवमेंट, क्योंकि एकदम जोरों शोरों में चल रहा है फार्मर के बारे में, ट्रेंडिंग टॉपिक है। ऐसा जैसे होली का कॉम्पोजिशन आया था आपको इंग्लिश में, वैसे फार्मर कॉम्पोजिशन ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्राइबल मूवमेंट को मैंने इसके लिए किया है क्योंकि आप इसको रेफरेंस डालना, सिर्फ क्या डालना है, रेफरेंस, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन वी हैव गॉट वुमेन्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स जो है इसको इतना वो नहीं दिया जाएगा प्रेफरेंस, बट ये वहाँ पर जो आप कंज्यूमर मूवमेंट आपको दिखेगा, जागो ग्राहक जागो, दिखा आपको पेज नंबर 95 पे, उसको हैशटैग कर लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ व्हेन वी मूव ऑन फर्दर अहेड वी गॉट दिस चैप्टर कॉल्ड चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी। नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ही पेज का चैप्टर है, कुछ भी इसमें से अगर आपने पढ़ लिया तो रिवाइज ही कर लेना बस, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विद दिस वी कम ऑन टू द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम इम्पॉर्टेंस। समझ में आया? इज इट क्लियर? दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू राइट नाउ इज we should start learning for the last 4 to 5 days which are left in our hand, because ये 5 दिन में ही हम लोग को 80 मार्क्स मिल सकते हैं, 40 हिस्ट्री के और 40 किसके, ज्योग्राफी के। समझ में आया? तो 40 + 40 80 होता है, और आपको 20 मार्क्स तो किस में से मिलने वाले हैं, डेफिनेटली इंटरनल के मिलेगी। तो आपको 100 मार्क्स तो आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री में कमाना ही है, कैसे भी करके आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि 20% मिल जाएगा आपको सीधा सीधा अगर आपने क्या कर दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी को बेस्ट कर दिया। क्योंकि हिस्ट्री के भी बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है, आप उसको देखते रहना। चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैम्पियन, और ये बात ध्यान रखना कि मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो इंसान प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, उसके अंदर ऊपर वाला रहता है, तो आपको अपना बेस्ट देना है। दैट्स इट, अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।